Good morning, students. Today we learn 12th class chapter Relation and Function. Before starting the chapter, we studied some terms. First of all, we study ordered pair. Ordered pair, if x and y any two real number, x and y are any two real number, then ordered pair is represented by x comma y closed in open bracket. This is a single element. Here x is first element, or you can say coordinate, and y is second element, that is second coordinate. Ordered pair are different from sets. Sets are represented by curly brackets, whereas these ordered pair are always represented by small bracket. In sets, set AB, set having element A and B is equal to set having element B and A. Here in sets there is no difference of order, that is order doesn't matter. Element can be written in any order in case of sets, but ordered pair, in ordered pair order matter. Ordered pair AB is not equal to BA. Two ordered pair just like x comma y and w comma z are equal only if x is equal to w and y is equal to z. Two ordered pair can only be equal if first element is equal to first element of other ordered pair, second element is equal to second element of a ordered pair. This is all about ordered pair. Now we define Cartesian product of two sets. As you are already familiar with sets, we studied sets in +1 under the chapter sets. Now let us study Cartesian product of two sets. If A and B are any two sets, then their Cartesian product is always represented by A cross B. Here this cross is not multiplication, this is standard sign, this is cross. This is called as Cartesian product. And A cross B is also a set, and this set has ordered pair in the form A comma B, where A belong to set A and B belong to set B. Element of first set is always written first element of ordered pair, and second set is written as second element of ordered pair. Now we are interesting to find out in this example Cartesian product of set A and B. Set A is here, this is curly bracket x comma y, curly bracket band, then B is equal to 1 2. Now Cartesian product of A cross B is equal to x को हम पहले सेट के दोनों एलिमेंट को पहले हम 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, दैट इज x कोमा 1 ओपन ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, देन x कोमा 2, देन y कोमा 1, देन y कोमा 2. इस तरह से A क्रॉस B के अंदर हमारे टोटल 4 एलिमेंट आ जाएंगे. A क्रॉस B हैविंग 4 एलिमेंट. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B ऑलवेज इक्वल टू the product of number of element in set A to the number of element in set B. That is, if set A has 2 element and set B has 2 element, then A cross B have 4 element. Similarly, if set A has 2 element and set B has 3 element, the number of element in A cross B always equal to 2 into 3, that is 6. A cross B is not equal to B cross A. A cross B only equal to B cross A if A is equal to B. Number of element
in A cross B always equal to number of element in A multiply by number of element in B. Number of element in any set is called as its cardinal number. If a set A has 2 elements, then cardinal number of A is equal to 2, and B has 3 elements, then cardinal number of B is equal to 3, and cardinal number of A cross B is equal to 2 into 3, that is equal to 6. Now as A cross B is a set, so this set must have subsets. We are already learn about subset of a set, power set of a set. Now number of element of subset is equal to number of element in power set of a set, or you can say every subset of a set, every subset of set A cross B is a relation. Now we define what is a relation. Relation is always represented by capital letter R. कैपिटल लेटर से हम रियल नंबर को भी डिनोट करते हैं, बट इन दिस चैप्टर हेयर वी रिप्रेजेंट दिस इज relation by capital letter R, and we always mention whether R represent a relation or set of real number, you can say. Now what is relation? A relation is always represented by R. सपोज कर लो A and B कोई भी दो सेट हैं, लेट अस से A and B are any two sets. These are subset of A cross B. These are subset of A cross B. A cross B has element in form of ordered pair just like A comma B. Close in small bracket. This is ordered pair. This is element of A cross B, where small a belong to set A and small b belong to set B. Now relation का वही मीनिंग होता है जो हमारे एवरीडे लाइफ में होता है, जो कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ संबंध बताता है, रिलेशन बताता है. यहाँ पे भी क्या करेगा, एक रिलेशन एक नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट को दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा. दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट के साथ क्या करेगा, एसोसिएट करेगा. इफ़ आर इज ए रिलेशन देन a ordered pair AB belong to R, then we can say A is related to B under relation R. And if AB ordered pair this is does not belong to R, then we say that A is not related to B, and we write it also as A. R के ऊपर हम क्रॉस डाल देंगे B. If A is equal to B, we often say that R belong to A cross A. Mean every subset of A cross B is a relation, you can say. If A has 2 elements, B has 3 elements, then number of element in A cross B is 2 into 3, that is 6. And we know that number of subset of any set is 2 to power number of element in the set. If A cross B has 6 element, then total number of A cross B has 6 element, then total number of subset of A cross B is 2 to power 6, that is 2 into 2 into 2 into 2, 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, that is equal to 64. Phi is a subset of every set, and we say that every subset of A cross B is a relation. Therefore if set A cross B has 6 element, then total number of subset of A cross B is 64, that is 2 to power 6, and this 64 subset are called as 64 relation defined from set A to set B. The number of relation from set A to set B is always equal to number of subset of that very set. Now we define a relation given that A is equal to 1 2 3 and B is equal to x y z, then every subset of A cross B is always a relation. Here in A there are 3 elements,
B, there are 3 elements, then element in A cross B is equal to 3 into 3, that is equal to 9, and number of subset of A cross B is 2 to power 9, that is 512, and each subset is called as a relation which is defined from A to B. Therefore from set A to set B here there are total 512 relation. One of these relation is written here, that is R is equal to, our relation is also represented by a set, and element of this set which is a relation are always ordered pair. Here R is equal to 1y, ये एक एलिमेंट है इसका ऑर्डर्ड पेयर है, 1, Z and 3, Y. This is a relation from A to B. In this way we can find out the number of, this is you can say relation from set A to B. Next we see example. Consider these relation on the set of integer. This is R1 एक relation है, रिलेशन इसमें ये एक सेट बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के आएंगे, ए इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बी. अब ऐसे यहाँ पे R2 गिवन है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए ग्रेटर देन बी, R3 ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू माइनस बी, R4 R5 R6 तक के यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है. अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज रिलेशन कंटेन ईच ऑफ द पेयर. अब नीचे कुछ पेयर गिवन है, 1 1, सेकेंड पेयर है 1 2, 2 1, 1 -1 एंड दिस इज़ 2 2. अब ये ऊपर 6 रिलेशन हमें टोटल डिफाइन कर रखे हैं और ये पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन इनमें से हर एक पेयर को कंटेन करता है. हम 1 बाय 1 चेक करेंगे इनको. फर्स्ट ऑफ ऑल हम R1 रिलेशन लेते हैं, उसमें पहले देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इसमें है या नहीं है. 1 ए बी 1 है, इसके अंदर बी भी 1 है, और जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है क्योंकि ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए बी से लेस हो या इक्वल हो तब वो रिलेशन के अंदर जाएगा. अब 1 1 के तो इक्वल होता है, तो 1 1 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है. 1 2 की बात करते हैं, ए 1 2 ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और 1 लेस देन 2 होता है, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर भी R1 में है. नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में 2 1 जो है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 होता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा. हमें क्या बताना है, विच ऑफ दीज रिलेशन कंटेन ईच ऑफ द पेयर. तो फर्स्ट रिलेशन कंटेन नहीं करता सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर को, यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट हम चेक करेंगे सेकंड ऑर्डर्ड पेयर को. सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में फिर ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं सेकंड रिलेशन के अंदर, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी. अगेन वी चेक, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ordered pair 1 1, here a is equal to 1, b is also equal to 1. We cannot say that 1 is greater than 1, 1 is always equal to 1, therefore this ordered pair does not belong to R2. तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट थर्ड रिलेशन के लिए हम चलेंगे, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू माइनस बी. इसमें ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो ये दो कंडीशन फुलफिल करेंगे. फर्स्ट वन इज दैट इज़ अगर आप ए 1 लेते हो बी भी 1 लेते हो तो 1 1 के इक्वल आता है, ये इसके अंदर आएगा. या फिर ए इज इक्वल टू माइनस बी हो, ठीक है जी, इनमें से कोई सा भी हो. जैसे अब हम 1 की बात करें, 1 2 के इक्वल नहीं होता, या 1 ना ही -2 के इक्वल होता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है 1 2 इसके अंदर नहीं आएगा. दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ना तो 1 2 के इक्वल है और ना ही 1 -2 के इक्वल है. देयरफॉर दिस सेकंड ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग टू थर्ड रिलेशन. नाउ वी मूव ऑन फोर्थ रिलेशन. दिस इज ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी. इसमें भी हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर तो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर फोर्थ रिलेशन में आएगा, बट दिस इज सेकंड ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग टू फोर्थ रिलेशन. वाई? बिकॉज दिस इज हेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी. देयरफॉर दिस ऑर्डर्ड पेयर 1 2 डज नॉट बिलोंग टू ए रिलेशन R4. नाउ वी चेक रिलेशन R5. This is R5 is A is equal to B plus 1
R5 में वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कंडीशन फुलफिल करेंगे A इज इक्वल टू B प्लस 1 कि A इक्वल टू आई, B में 1 ऐड करके। अब इसमें तो पहला ही ऑर्डर्ड पेयर हम चेक करते हैं, वो आएगा ही नहीं क्योंकि 1 1 के इक्वल होता है। A 1 है, B 1 है। अगर A को 1 करें और उस साइड में B को 1 पुट करें तो A 1 इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, जो इक्वल नहीं होता। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फिफ्थ रिलेशन में भी सभी के सभी नहीं जाएंगे। अब हम सिक्स्थ रिलेशन के पास पहुंच जाते हैं। सिक्स्थ रिलेशन में क्या है कि A और B का सम करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। दिस इज़ 3, या उसके इक्वल आए या उससे लेस आए। लेकिन अगर हम ऑर्डर्ड पेयर 2 2 को ही उठा के चले यहाँ से, 2 और 2 का सम कितना आता है, 4 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3 एंड लेस देन 3। और जितने भी आगे ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सभी के सभी चाहे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, लेकिन 2 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन करे। नोट दैट दीज रिलेशन आर on an infinite set, each of these relation is an infinite set. Checking the condition that define each relation, we see that 1 1 जो है वो 1 से 6 तक आएगा, 1 2 जो है वो R1 और R6 में आएगा, 2 1 R2 R5 में आएगा। मीन सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर किसी भी रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे। विच ऑफ दीज रिलेशन कंटेन ईच ऑफ द पेयर, हर एक पेयर को कंटेन करता है। कोई भी ऐसा रिलेशन इनमें से नहीं है जो हर एक पेयर को कंटेन करे। 1 1 को सभी रिलेशन कंटेन करेंगे, 2 2 को भी सभी रिलेशन कंटेन नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कोई रिलेशन यहाँ नहीं आएगा विच कंटेन ऑल दीज, यू कैन से ऑर्डर्ड पेयर। नाउ नेक्स्ट we move on. This is domain and range of a relation. Domain, this is a set, range also is a set. Now domain of a relation R is the set of all first element of ordered pair belong to this is R, for example. And range is the set of element of second element of relation R. This is A set 1 2 3, B set x y z, then relation is 1 y 1 z 3 y, then domain of this set is 1 3। रिपीट नहीं करेंगे हम क्योंकि डोमेन एक सेट है। जैसे 1 1 2 टाइम आ रहा है, जो पहला एलिमेंट है वो उठा के हम इसके अंदर लिख देंगे, वो डोमेन सेट बन जाएगा। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट को हमें उठा के लिख देंगे दूसरे सेट के अंदर, वो आपका रिलेशन की रेंज बन जाएगी। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज किसी भी रिलेशन की कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है इनवर्स रिलेशन। अगर कोई रिलेशन आर है देन इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसके ऊपर इनवर्स का साइन लगा देंगे, -1 जैसे हम लिख देते हैं, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड है ये। अगर एक रिलेशन आर A to B डिफाइन है तो उसका इनवर्स B to A डिफाइन होगा। जो डोमेन होगी आर की वो रेंज कहलाएगी आर इनवर्स की, एंड जो रेंज होगी आर की वो डोमेन कहलाएगी आर इनवर्स की। नाउ इफ रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम A to B हैविंग ऑर्डर्ड पेयर लाइक A, B, then inverse of R is equal to a set having ordered pair B to A, where A, B both belong to real number. Okay, now if R is a relation defined from set A to B, here example is taken, this is 1 2 3 A and B is x y z, then R is equal to 1 y 1 z and this is you can say 3 y. तो हम पीछे देख चुके हैं कि रिलेशन आर की जो डोमेन है वो 1 और 3 है और रेंज y और z है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। आर इनवर्स की जो क्या आएगी हमारे पास, आर इनवर्स पहले रिलेशन लिख लेते हैं। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, दिस इज़ y1 z1 एंड दिस इज़ y3। ऑर्डर चेंज कर देंगे हम, किसका, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखे एलिमेंट का फर्स्ट को सेकंड बना देंगे, सेकंड को फर्स्ट बना देंगे। ठीक है जी। और इसकी जो आर इनवर्स की इनवर्स फंक्शन की जो अब यहाँ डोमेन आएगी दैट इज़ y एंड z, और जो इसकी रेंज आएगी वो 1 3 है। मतलब जो रिलेशन आर की हमारे पास डोमेन है
वो आर इन्वर्स की रेंज हो जाएगी, और जो रिलेशन आर की रेंज है वो आर इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। अगर हम किसी रिलेशन के इन्वर्स का इन्वर्स लें तो वो खुद रिलेशन ही आएगा, रिलेशन आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है डोमेन और रेंज आर इन्वर्स की इक्वल टू होती है, मैंने बता दिया आपको। आर इज ए रिलेशन ऑन ए देन आर इन्वर्स इज ए रिलेशन ऑन ए। मतलब अगर ए के ऊपर, ए की सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन हो तो उसका इन्वर्स भी ए के ऊपर ही डिफाइन होगा। नेक्स्ट है, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाद में करेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन। यहाँ पे हम 3 टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन में, जो सेट ए से ए पर ही डिफाइन होगा। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के साथ साथ हम ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत है। सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। मेन तो 3 है यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? If R is a relation defined from set A to set A, then R is called reflexive if ordered pair A belong to R, for all A belong to A, and R is not reflexive if there exist A belong to A such that A this ordered pair does not belong to R। मीन किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे जो सेट ए से ए पर ही डिफाइन है। सपोज कर लो सेट ए हमारे पास है 1 2 एलिमेंट हम पहले लेके चलते हैं सेट ए के अंदर। तो ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट आएंगे 1 1 1 2 2 1 2 2, 4 एलिमेंट होंगे। ये मैं एग्जांपल इससे अलग ले रहा हूँ, 2 एलिमेंट सेट वाला। यहाँ पे 3 एलिमेंट का सेट दे रखा है। 1 2 हमने सेट ए के अंदर एलिमेंट लिए, देन रिलेशन आर जो बनेगा ए टू ए इज, दिस इज रिलेशन आर जो बनेगा वो ए क्रॉस ए का कोई ना कोई सबसेट होगा। ए क्रॉस ए के अंदर टोटल 4 एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, 1 1 1 2 देन 2 1 2 2। नाउ एनी सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस ए इज आर रिलेशन। नाउ let us say there are total 2 to power 4 that is 16 relation here। अब हम एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सेम एलिमेंट का सेम के साथ ऑर्डर्ड पेयर आए और वो सभी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हों, जितने की सेट ए के अंदर एलिमेंट हों, उस हर एक एलिमेंट का अपने साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन के अंदर आए तब हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे मान लो सेट ए के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर और 2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। ये तो सेट के अंदर ये तो रिलेशन के अंदर होने ही होने चाहिए। अगर इनसे अलग भी हो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर 1 1 हो और 2 2 ना हो तब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ऐसे समझ नहीं आएगा, स्क्रीन पे देखो आप। एक सेट ए दे रखा है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। यहाँ पे रिलेशन 3 डिफाइन कर रखे हैं। एक फर्स्ट रिलेशन R1 है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2 2 1 2 2 एंड 3 3 गिवन है। अब यहाँ सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, और R1 रिलेशन के अंदर हम देखते हैं कि 1 का 1 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, 2 का 2 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, 3 का 3 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। उससे अलग कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो, जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट का उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन के अंदर होगा, then that very relation is called as reflexive relation, therefore R1 is reflexive here। See example 2, that is R2 के अंदर 1 1 1 2 2 1 2 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। हेयर 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर सेट यहाँ 2 ही एलिमेंट का होता
1 और 2 का, तब R2 रिफ्लेक्सिव होता। बट हेयर सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट 1 2 एंड 3, 1 1 R2 में प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, बट 3 3 इज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर R2 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन थर्ड रिलेशन R3 दैट इज इक्वल टू 5, दिस इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ये हमें चेक ही नहीं करना, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई भी एलिमेंट किसी भी रिलेशन के अंदर ना हो तो किसी एलिमेंट के लिए हमें चेक करना ही नहीं। दिस इज एम्प्टी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, तो हमें यहाँ से पता चल चुका है, इस तरह से हम रिफ्लेक्सिविटी किसी भी रिलेशन की देख सकते हैं। जिस भी सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन है, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर सेट के अंदर होना चाहिए। अगर सेट के अंदर है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। द फ्लोइंग रिलेशन ऑन द दिस इज यू कैन से इंटीजर आर रिफ्लेक्सिव, R1 ए बी ए लेस देन और इक्वल टू बी यू कैन से। अब अगर ए सेट ए का एलिमेंट है, बी भी सेट ए का एलिमेंट है, तो जो सेम कोई भी एलिमेंट अपने के इक्वल तो होता है, और इस R1 रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होता है। ऑर्डर्ड पेयर के दो कोऑर्डिनेट आपस में जब इक्वल होते हैं, उस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगा। तो हर एक नंबर अपने के तो इक्वल होता ही होता है, 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह से हम R3 को देखते हैं, R2 को या R3 को कह देते हैं, R3 को देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, A इज इक्वल टू बी और A इज नॉट इक्वल टू -b, उस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। जैसे 1 1 इसमें आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, ये भी है। जहाँ पे भी इक्वल की बात होगी वो रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही होगा। अगर हम यहाँ पे a ग्रेटर देन b की बात करें, a इक्वल टू b प्लस 1 और a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 3 की बात करें, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने से बड़ा नहीं होता। अगर a को 1 लिखें, b को भी 1 लिखें, 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस इज R2 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली इफ़ a इज़ 1 b इज आल्सो इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू b प्लस 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 2 बनेगा, 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता। R5 दिस रिलेशन इज आल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलरली वी शो दैट रिलेशन 6 इज आल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट सेकेंड काइंड का जो रिलेशन आता है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? अ रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम सेट A to B, दिस इज यू कैन से here this is all defined from A to B or A to A. You can say this is symmetric. If AB belong to R, then this also imply that BA also belong to R. That is, if ordered pair 1 2 belong करता है रिलेशन R को, तो 2 1 भी R को बिलोंग करे। 1 3 R को बिलोंग करता है तो 3 1 भी R को बिलोंग करे। If 2 3 belong to R, then 3 2 also belong to R. Then that very relation is called as a symmetric relation, you can say. If AB belong to R but BA does not belong to R, then relation is not a symmetric relation. For example, consider the following relation set A. A is 1 2 3, R1 is 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3. Here 1 1 2 2 3 3 belong कर रहे हैं और तीन ही एलिमेंट है सेट ए के अंदर। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 1 2 एंड 2 1 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन, दैट इज 1 2 ए बी का काम करेगा और बी ए उसका उल्टा हो गया 2 1 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन। दिस इज यू कैन से सिमेट्रिक रिलेशन आल्सो। R2 सेकेंड रिलेशन है 1 1 1 3 2 2। दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। Why? Because 1 2 as belong to R2 but 2 1 does not belong to R2, therefore this relation is not a symmetric relation. If in a relation there exists any ordered pair whose reverse does not belong to that very relation,
फॉर एग्जाम्पल, if 1-2 belong to a relation but 2-1 does not belong to, this check for every ordered pair. 3-4 belong to R एंड 4-3 के लिए भी हम देखेंगे 4-3 उसको बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए उसका उल्टा भी उसके अंदर आना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट थर्ड काइंड ऑफ रिलेशन वी स्टडी हेयर इज, ये बाद में स्टडी करेंगे, एंटी सिमेट्रिक। This is transitive relation. A relation R on set A is called as transitive relation. Defined from this is set A to B, you can say. Defined from set A to A, you can say if AB belong to R, BC belong to R, and AC belong to, this implies AC belong to R, where A, B, C all are रियल नंबर, सभी रियल नंबर है। ठीक है जी, कि अगर किसी भी रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, फिर जो पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो पीछे वाला हमारे पास एलिमेंट है बी, वो सी के साथ रिलेटेड हो, बी सी भी बिलोंग करे आर को, और ये दोनों इम्प्लाई करें कि ए सी बिलोंग करता है आर को, तब रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1 2 3 एक सेट है, R1 एक रिलेशन डिफाइन करके है 1 1 1 2 2 3 1 3। अब हम यहाँ पेयर से देखेंगे, जैसे हम 1 2 को उठा के चलते हैं, 1 2 1 2 दिस इज बिलोंग टू रिलेशन R1, एंड जो 2 आ रखा है 2 3 से रिलेटेड है, 2 3 बिलोंग कर रहा है किस में, सेट में, R1 रिलेशन में। और अब हम देखें कि 1 3 भी रिलेशन के अंदर है, 1 3 भी रिलेशन के अंदर है। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड पेयर को देखें, दिस इज 2 3 बिलोंग टू R1, अब इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 है, और वो 3 पहले लेके और उसके साथ कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हमें सिर्फ एक पेयर के लिए चेक करना पड़ेगा, 1 2 के लिए। 1 2 2 3 अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट रिलेशन सेकंड है 1 1 1 2 2 2 2 3, 1 1 1 2, अब 1 2 आ रहा है तो 2 2 भी आ रहा है। अगर इसको देखा जाए 1 2 1 2 आ चुका है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज 1 2 और 2 3 को, 1 2 and 2 3 both belong to R2, but 1 3 does not belong to R2, therefore this is not transitive। ऐसे ही नेक्स्ट R3 में हम देखेंगे, मतलब हमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर को दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ लेकर देखना पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि जो पीछे वाले एलिमेंट हो, एक का पीछे वाला एलिमेंट पहले का, दूसरे का पहला एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे यहाँ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 ले रहे हैं हम, 1 2 में पीछे वाला एलिमेंट 2 है, तो इसको हम 2 3 के साथ भी कंबाइन करके देख सकते हैं, क्योंकि 2 3 में पहला एलिमेंट 2 है। तो अगर 1 2 2 3 R2 को बिलोंग करें तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए। इस तरह से हम किसी भी रिलेशन की ट्रांजिटिविटी को चेक कर सकते हैं। अब ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हों, सिमेट्रिक भी हों, ट्रांजिटिव भी हों, दैट वेरी रिलेशन आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। Therefore, an equivalence relation is that very relation which relation is, this is you can say reflexive, symmetric and transitive. Now हम एग्जाम्पल्स करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।